मा 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 तुमे पराम जीवन गुहारे तुमे पराम जीवन गुहारे विराजित क्षमा मा 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 तुमे तो देइछ आमकु सदा आशा आउ भरोसा केबे केउठी हुडिले बाट हात धरी सहसा तुमे तो देइछ आमकु सदा आशा आउ भरोसा केबे केउठी हुडिले बाट हात धरी सहसा चलाउछ होई जीवन मरुरे चलाउछ होई जीवन मरुरे आशा बारी धारा मा 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 तुमरी आखिरे भरिछि केते करुणाशिष तुमरी हस्तरे फुटिछि सते प्रेमर गोलाप तुमरी आखिरे भरिछि केते करुणाशिष तुमरी हसरे फुटिछि सते प्रेमर गोलाप तुमे पराम विपदे आपदे तुमे पराम विपदे आपदे हेउछ एका साहा मा 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 तुमे पराम जीवन गुहारे विराजित क्षमा मा 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 कृतज्ञता माँ वंदे मातरम। कृतज्ञता पर प्रणाम। आज आलोचना चक्र जोग देइथिबा समस्त मातृ संतान मान हृदय अनेक अनेक शुभेच्छा प्रणाम। आज कार्यक्रम नेतृत्व स्वप्नापांक पर रही एवं सम्मान्य कांचन अपा प्रभु पाद पद्म वंदना निवेदन कर सहयोग करते अनेक अनेक शुभेच्छा। आम विगत दिन में चैप्टर 3 जो भाई अपा सूचना देले 3 फोल्ड लाइफ रो नवम पाराटी पढ़ी एवं दशम पारारू किसी अंश पढ़ी दशम पाराटी सरी नथिला तेणु आलोचनार कंटिन्यूटी को रखापी जहाँ पढ़ी टे स्मरण को आनिबा एवं तापरे आज अध्ययन मध्य को जीवा। नवम पारार सेकेंड लाइन रो आम आरंभ करिबा। प्रभु सेठारे कहिथिले जे द होल एम ऑफ मटेरियल मैन इज टू लिव
to pass from birth to death with as much comfort or enjoyment as may be on the way, but anyway to live. Material man বা দেহ সর্বস্ব মଣିষটি বা জড় প্ରାଣଗତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷଟିର ସମୁଦାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟୁ ଲିଭ୍, କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଖାଲି ଦେଖୁଛେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ବି ଆମ ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ନେଇ ବୁଝିବା ଯେ କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ କେତେ ସଂଘର୍ଷ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ, ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏପରିକି ପାପ କର୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ପାପ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ, ଆଉ ପେଟଟି ପୂରଣ ହେଇଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆରାମ ଖୋଜେ, ଉପଭୋଗ ଖୋଜେ। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ଆରାମ ଓ ଉପଭୋଗର ବାସନା ନେଇ ସେ ବଞ୍ଚି ରହେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ପାସ୍ ଫ୍ରମ୍ ବାର୍ଥ ଟୁ ଡେଥ୍ with as much comfort or enjoyment as may be on the way, ଯାହା ଆସିଲା। ଆଉ ଯଦି ବା ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନଟିଏ ହେଇ ନ ପାରିଲା, ଉପଭୋଗର ଅବକାଶ ଯଦି ନ ଆସିଲା, ତଥାପି କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ଏହା ହିଁ ହେଲା ଜଡ଼ ପ୍ରାଣଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମ୍ୟାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଯେ he can subordinate the same but only to physical nature's other instincts, the reproduction of the individual and the conservation of the tribe in the family, class or community. এই ଦେହଗତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷଟି ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ, ଏବଂ ଏଇ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅଧୀନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ସେ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହା ବି କୌଣସି ବୃହତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ବି ସେଇ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିକଟରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଯେମିତି ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛି ତା ପାଖରେ, ସେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ପାଖରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। He can subordinate this aim but only to physical nature's other instincts. ତାହେଲେ ସେଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଯାହା ପାଖରେ ସେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଥାଏ ବା ତାର ଅଧୀନ ହେଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଉଛି the reproduction of the individual and the conservation of the type in the family, class or community. ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଲା ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନଃ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା, ବା ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବଞ୍ଚି ରହିବା ଓ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏବଂ କନଜରଭେସନ ଅଫ ଦ ଟାଇପ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି, କ୍ଲାସ ଅର କମ୍ୟୁନିଟି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପରିବାର ଭିତରେ ଅଥବା ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେଇ ପରିବାରରେ ବା ସେଇ ଶ୍ରେଣୀ ବା ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ତାର ନିଜର ପ୍ରକାରଟିକୁ, ଟାଇପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବଞ୍ଚି ରହେ ଏଇଥିପାଇଁ। ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଆବେଗଟି ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ନେଚର୍ସ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ୟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ, ଦେଖୁଛେ ଏ କଥା ସବୁ। ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନଗ୍ରସର, ଦୈନନ୍ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଗଣ୍ଡାକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ବି ନଥାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା।
तथापि सेमाने केते पिला जन्म 8-10 पिला सब जन्म करते ये भाव में मु जन को पचारि भी थी जे भाई देख तमर आर्थिक अवस्था एते खराब खाइबा पाए तुम पाखे आवश्यक अर्थ नहीं ता भीतर तुम एते पिलांकर प्रतिपोषण केमती कर केते गुड़े छुआ कहीं जन्म कल मुझे पचारि आर उत्तर थिला बाबू आमे जन्म देनु ये सब भगवान देइछन बड़ा सुंदर उत्तर किंतु से माने जो शब्द व्यवहार कले जे भगवान देइछन सीटा जे गोटे फिजिकल नेचर्स इंस्टिंक्ट गोटे प्राणगत आवेग द्वारा परिचालित ही कार्यटी करुचंती फिजिकल नेचर्स इंस्टिंक्ट होउची केवल बंची रहबा वंश वृद्धि करबा एपरिकी देखिए आमे अनेक लोक को विज्ञ व्यक्ति बोली मन करू तांको मान्यता दाओ विज्ञ व्यक्ति बोली से माने केवल आमे माने मध्य आमे माने से गोष्ठीर भी अंतर्भुक्त फिजिकल नेचर्स इंस्टिंक्ट बसवर्ती हो एपरिकी मु ना कहबिनी आपण माने समस्त जानी आम ओडिशार जड़े राज्यपाल थे जड़े विद्वान व्यक्ति से बहु विज्ञ व्यक्ति किंतु तांकर 12टी संतान अच्छा सब कौन एपरिकी आप देखिए जदि बा कहीं संतान संतति लाभ करने को चाहू नथिबे परिवार भी तांका ऊपर चाप पड़े लोक मान सब कहती कौन तो वंश बुड़े देबू ये गुड़िक सब हूँ फिजिकल नेचर इंस्टिंक्ट तापर प्रभु कहते जे सेल्फ domesticity, the accustomed order of the society and of the nation are the constituents of the material existence. अर्थात भौतिक जीवन रो आ गोटे लक्षण है निज को सेल्फ पारिवारिक जीवन बा डोमेस्टिसिटी समाज और राष्ट्र प्रचलित व्यवस्था मध्य जीवन निर्वाह करबा जहाँ प्रचलित अच्छी तार भीतर एडजस्ट करवा निजको अतिक्रम आउ किछि अधिक हे उठिबार प्रवृत्ति न थाए केवल जहाँ प्रचलित सी परिवार रे प्रचलित व्यवस्था हो देशर हो बा समाज र प्रचलित व्यवस्था हो ताको मानि नेकरी से व्यक्ति से व्यवस्था अनुसार जीवन निर्वाह करवा यह गोटे मटेरियल मैन बा जड़गत जीवन बंचुवा मनुष्यर लक्ष्य ही रही है आमको 3टी उद्देश्य मटेरियल मैन रो बा जड़ प्राणगत जीवन बंचुवा मनुष्यर लक्षण सब कह से केवल बंची रहे आउ जदि सुविधा आसला तो भल न आसिले केवल बंची रहिबा निजर प्रकार टी वंश वृद्धि करबा एवं आकस्टम्ड सोसाइटी जहाँ प्रचलित व्यवस्था अच्छी ता भीतर निजको एडजस्ट कर बंचवा बा से प्रथा गुड़ी को मानि चलवा प्रभु कहते इट्स इमेंस इंपोर्टेंस इन द इकोनॉमी ऑफ नेचर इज सेल्फ एविडेंट एंड कमेंसरेट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन टाइप व्हिच रिप्रेजेंट्स इट प्रभु कहते जे विश्व प्रकृतिर ये जो भौतिक व्यवस्था रही अर्थात बंची रहिबा संसार बढ़ेबा समाज और परिवार प्रचलित व्यवस्था भितर जीवन बंचवा ये गुड़िक असार जिनस आदौ नुहे बर प्रकृतिर यही व्यवस्थाटी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था आम जाचे मनीष भितर आम प्रभुंकर अन्य आलोचना जाचे जे मनीष भितर दिने दिव्य विवर्तन घट मनीष ही दिव्य परम सत्ता को प्रकाश कर उपयुक्त माध्यम वर्तमान हुए तो मनीष अपूर्ण हो रही किंतु मनीष भितर चेतनार आरोहण संभव हो चली तेणु प्रकृतिर जो नियोजन व्यवस्था भितर मनीषटी को बंचे रखार व्यवस्था प्रकृति करी
तेणु यार महत्व निश्चय रही फिजिकल नेचर इनस्टिंक्ट जो मनुष्यटी बंची रही एवं तार वंश वृद्धि करके से तार प्रकार टी बंचाई रखी यहाँ गोटे महत्वपूर्ण व्यवस्था प्रकृति। तापर प्रभु कहते He assures her of the safety of the framework she has made and the orderly continuance and conservation of her past gains. अर्थात he assures her, he अर्थ मनुष्य, her अर्थ प्रकृति, अर्थात प्रकृति जो भौतिक व्यवस्था तैयारी करछि मनुष्य प्रकृति को गोटे निर्भर प्रतिश्रुति दौछि। कौन प्रतिश्रुति दौछि? यह प्रतिश्रुति दौछि जे अतीत रे प्रकृति जहाँ सब सृष्टि करिछि ताहार सेफ्टी। He assures her the safety of the framework she has made. मनुष्य प्रकृतिर व्यवस्था को सुरक्षित रखिबार प्रतिश्रुति देउछि माध्यम and the orderly continuance and conservation of the past gains. अतीत रे प्रकृति जो सब सिद्धि गुड़िक हासिल करछि बा मनुष्य नामक जो फ्रेमवर्क बा प्रकार टी तैयारी करछि प्रकृति करिछि कारण भविष्य रे ई मनुष्य ही भगवान प्रकाशक यंत्र हे उठिबो। तेणु ई मनुष्यर फ्रेमवर्क टी को सुरक्षित करी रखिबा फिजिकल नेचर्स एम। जड़ प्राणगत जीवन बंचुथिबा मनुष्यटी प्रकृति को यही प्रतिश्रुति दौछि जे मु तो तुम्हें सृष्टि करिथिबा पास्ट गेन्स बा तुम जहाँ सृष्टि करिछ ताको सुरक्षित रखिब। तेणु ई मटेरियल फिजिकल इनस्टिंक्ट ताको यही दिगरे प्रकृति को सहायता करुछि। तेणु एगुड़िक असार जिनस नुहे, बहुत इंपोर्टेंट जिनस। किंतु परे परे दशम पारारे यार जो लिमिटेशन गुड़िक रहुछि प्रभु ताको दशम पारारे आलोचना कर से प्रभु कहते बट बाय दैट वेरी यूटिलिटी such men and the life they lead are condemned to be limited, irrationally conservative and earthbound. प्रभु कहते मात्र भौतिक प्रकृतिर ये जो यूटिलिटी बा प्रयोजन रही ताहाको मनुष्य पूरण करुछि सत हेले सच मेन अर्थात जड़गत जीवन टी को बंचुथिबा मनुष्य माने बा मटेरियल मैन प्रायतः इथिरे आमे सबु मनुष्य जीवे बोली आमे कहि परिबा। सबु मनुष्य बहु मनुष्य समाजर मुख्य गंडीटी समग्र मानव जातिर मुख्य गंडीटी एथिरे बंचुछन। सेई मनुष्य ओ सेमानकर जीवन अतीव सीमा संकुचित होई रही। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ मटेरियल मैन। जदियो से प्रकृतिर आवश्यकता पूरण करुछि तथापि प्रभु भी कहले एटा गोटे महत्वपूर्ण व्यवस्था किंतु सेमानकर जीवन अति संकुचित होई रही। खाली खाई पी बंचिबा वंश वृद्धि करबा प्रचलित व्यवस्था भितर निजको खाप खुआई नेबा एतिकरे मनुष्यटी अटके एतिकरे से सीमाबद्ध होकर रही एवं इरेशनली कंजर्वेटिव एंड आत्माउंड अर्थात गोटे इरेशनल गोटे विचार शून्य भाव में कंजर्वेटिव रक्षणशील हो पड़ी से एवं पार्थिव सर्वस्व ही रही बाध्य होकर रही। खाली जीवन कहले एतिक मात्र बुझेब जमती कहुई शास्त्र मान जे आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एत पशु भी नरण खाली खाइबा पीवा वंश वृद्धि करवा एतिक भितर से सीमाबद्ध हो रही जीवन टी गोटे पशुर जीवन सहित समान। तापरे प्रभु कहते द कस्टमरी रूटीन द कस्टमरी इंस्टीट्यूशंस the inherited or habitual forms of thought, these things are the life breath of their nostrils. ई जड़ प्राणगत चेतन रे वास करुवा मनुष्यटी
बाई मनुष्यर एमिति अभ्यास जे से केवल कस्टमरी रूटीन प्रचलित जीवन शैली को नहीं जीवन बंचिब जहाँ प्रचलित होती तार भीतर से रहिब आउ कौन नूतनत्व ना आउ कौन प्रसारण ना कौन अग्रगति ना खाली से नुहे दि कस्टमरी इंस्टीट्यूशंस चिराचरित ढंगरे नाना अनुष्ठान द इनहेरिटेड हैबिचुअल फॉर्म्स ऑफ थॉट केवल वंशानुक्रमिक अथवा संस्कारगत भाव बा अभ्यासगत भाव जो विचार गुड़िक नहीं से बंची आमे देखिबा जे अनेक परिवार अछंती तांकर निर्दिष्ट परंपरा जमती के धरा जाओ आम गोटे उदाहरण लेकिन भी धर बुझी पारिबा जे गोटे शिशुटी जो जन्म हुए तापर सब परिवार रे अनेक विधि विधान पालन करा जाए एवं बंधु आत्मीय मान को मध्य निमंत्रण करा जाए एमती ये गोटे उदाहरण देली एमती अनेक पारिवारिक परंपरा इनहेरिटेड और हैबिचुअल फॉर्म ऑफ थॉट अभ्यासगत भाव विचार विचार से विचार टी को बजाय रखा से कौन परिवर्तन करा जीव नहीं विभिन्न गाँ और सहर मानकर भी अनेक प्रथा भी प्रचलित रही से कौन परिवर्तन करा जाई पारिबा नहीं प्रभु कहते एगुड़िक जमती नाकपुड़ार निश्वास ही रही लाइफ ब्रीथ अफेया नष्ट जहाँ प्रचलित अच्छी ताकू माने ताकू बजाय रखा दिस इज द लिमिटेशन तापर प्रभु कहते दे एडमिट and jealously defend the changes compelled by the progressive mind in the past, but combat with equal zeal the changes that are being made by it in the present. कौन कहते प्रभु हाँ ठीक अच्छे मनीष तो एमती एक सीमितता भितर मटेरियल मैन कथा कह सीमितता भितर बांधी रही किंतु मझिरे मझिरे अनेक महामानव बा समाज संस्कार माने आविर्भूत भी हुअन्ति प्रोग्रेसिव माइंड इन द पास्ट जो माने संस्कार सब आणन्ति अनेक महामानव मान महापुरुष मान से तालिका तो पृथ्वी इतिहास रे कम बहुत आम एमती केतेक उदाहरण नहीं पारिबा आम जातिर पिता महात्मा गांधी को नहीं पारिबा गोपबंधु को नहीं पारिबा स्वामी विवेकानंद को नहीं पारिबा स्वामी दयानंद सरस्वती को नहीं पारिबा राजा राममोहन राय को नहीं पारिबा अरिस्टोटल को नहीं पारिबा सक्रेटिस को नहीं पारिबा एमितिरे लंबा तालिका हो पारे से माने आविर्भूत होइचंती प्रभु कहते अतीत केतेक प्रगतिशील मन प्रोग्रेसिव माइंड केते परिवर्तन को आनी किंतु हाबिचुआलिटी भितर बांधी रही मनुष्य माने कौन करती से कथा को ग्रहण करती दे एडमिट एंड जिलसली डिफेंड द चेंजेस लोक माने से समाज संस्कार को मानकर नूतन संस्कार को ग्रहण करती एवं आग्रहर सह भी से नूतनतार पक्ष समर्थन भी करती बट combat with equal zeal the changes that are being made by it in the present अर्थात मानी नेबा सह समान उत्साह सह with equal zeal समान भाव जेमिति मानी नौचंदी से समान उत्साह सह नूतन विचारधारा को प्रतिरोध भी करती लड़ाई भी करती ये कथा करा जाए मटेरियल मैन रही हूँ प्रभु मानि नब किंतु जीवन में ताकू प्रयोग कर नहीं से कथाटी को से प्रतिरोध कर तापर प्रभु कहते फॉर द मटेरियल मैन द लिविंग प्रोग्रेसिव थिंकर इज एन आइडियोलॉग ड्रीमर और मैडमैन अर्थात जो लोक देह सर्वस्व जीवन टे बंचुची जड़ प्राणगत जीवन टे बंचुची से मनीष मान
नूतनतार कथा जो माने कहती से व्यक्ति माने आइडियोलॉग बा गोटे तुच्छा आदर्शवादी मनीष ये मटेरियल मैन यही आख्या दिए से गोटे तुच्छा आदर्शवादी मनीष जीवन वास्तवता भिन्न से जो आइडिया कहते आइडियोलॉजी कहते से गुड़ार सब किसी आवश्यकता नहीं अथवा ड्रीमर जड़े स्वप्न विलासी बोली किंबा अथवा मैडमैन गोटे पागल बोली कहे मटेरियल मैन बा जड़ सर्वस्व मनीषटी नूतनतार वार्तावह मान को पागल अथवा स्वप्नद्रष्टा अथवा तुच्छा आदर्शवादी बोली कह पुणी प्रभु इतिहास पृष्ठ गोटे उदाहरण दे कहते The old Semites who stoned the living prophets and adored their memories when dead were the very incarnation of this instinctive and unintelligent principle in nature. अर्थात आम पूर्व आलोचना कर सारी गत अधिवेशन मानक आलोचना कर सारी सेमाइट्स मान विषय विस्तृत भाव में आलोचना करते सेमाइट्स मान होचंती गोटे निर्दिष्ट मानव गोष्ठी जो माने दाबी करती जे से माने जो ग्रीक माइथोलॉजी रे वर्णित नोहा नामक देवता तांकर वंशधर से मान वर्तमान से गोष्ठी प्राय वर्तमान इस्राएल आरबर केतेक अंचल एवं नॉर्थ आफ्रिका आर केतेक अंचल ये वर्तमान भी बसवास कर सेमाइटिस माने एथिरे विशेष करी ज्यूज सम अरबियंस क्रिश्चियंस ये सब लोक से सेमाइट्स मान भितर अंतर्भुक्त प्रभु कहते जे प्राचीन सेमाइट मैन स्टोन्ड देयर लिविंग प्रोफेट्स धर्मदूत मान को टेका फोपाड़ी मारी दौले एवं adored their memories when dead एवं से माने मरीगला परे तांको उपासना करते ये भली मनीष मान को प्रभु कहते they were very incarnation of this instinctive and unintelligent principle in nature अर्थात विश्व प्रकृति भितर जो भौतिक दिगटी रही प्रकृति भितर तो अनेक दिग रही प्रकृति भितर भौतिक दिगटी रही मनर दिगटी रही एवं चिदगत संपदटी भी रही किंतु ये भौतिक दिगटी बा मटेरियल एस्पेक्ट होची अनइंटेलिजेंट बा बुद्धि विवर्जित तत्व से सेमाइट माने सत्य जमिति भौतिक प्रकृतिर अंध प्रवृत्तिर साक्षात अवतार तो अनइंटेलिजेंट एस्पेक्ट रही मटेरियल नेचर ही सेमाइट माने जमती सतरे से गुड़िकर अवतार एमती प्रभु गोटे सुंदर उपहार छल कहतु शब्द छटा दे वर्णना कर आमे गत अधिवेशन यही पर्यंत पढ़ी वर्तमान आमे पारा 10 रो शेष आड़ को आलोचना करबा प्रभु कहते in the ancient Indian distinction between the once born and the twice born it is to this material man that the former description can be applied in the ancient आम जदि आमर प्राचीन वैदिक सभ्यतार कथा जानिबा वैदिक सभ्यतार गोटे वर्णवाद थिला आपण माने समस्ते जानते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को मान को कहा जाउथला ना सेई मान को शूद्र बोली कहा जाउथला जो माने कि केवल जड़ भौतिक स्तर अनइंटेलिजेंट लेवल प्रकृतिर जो जड़ भौतिक स्तरटी रही से जीवन बंचुवा मनीष मान को शूद्र कह जाउथला जो मान भितर मानसिक विकास घटी न थाए हम जहाँ कहले अनइंटेलिजेंट
किंतु ब्राह्मण माने तांको परंपरा रे आपण देखिथिबे सो उपनयन व्यवस्था बा जो व्रत उपनयन सब करती व्रत घर करती ब्राह्मण घरे पिला ब्राह्मण टीए पिलाटीए पैसा पकेब पैसा पकेले सी ताकू कह जाए द्विज द्विज अर्थात द्वितीय जन्म तार है सेकेंड बाप कारण समस्ते प्रथम जन्म होती शूद्र ही समस्ते सबु मनीष प्रथम जन्म रे शूद्र से जमती कह जाए जात शूद्र जी जन्म करुना कहीं मानसिक विकास घटी न था तेणु जात शूद्र संस्कार द्विज आचार्य विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण जो मैंने इंटेलिजेंट हेले से माने गोटे द्वितीय जन्म पाए प्रायतः इंटेलिजेंट स्तर आम वैदिक परंपरा रे क्या क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण ये सब ऊपर स्तर मानसिक स्तर तल को जो मैंने रहे फिजिकल नेचर इंस्टिंक्ट द्वारा जो मैंने परिचालित होती जीवन बंचुंट से शूद्र बोली कहुला प्रभु वैदिक परंपरा से उदाहरण टी नहीं कहते प्राचीन भारतीय परंपरा रे वन्स बॉर्न एंड ट्वाइस बॉर्न अर्थात समस्त तो जन्म शूद्र किंतु ट्वाइस बॉर्न अर्थ जो मैंने एक प्रगतिशील मन स्तर को इंटेलिजेंट लेवल स्तर को आरोहण कर जाती से द्विज द्वितीय जन्म है प्रभु कहते द्वितीय किस्म व्यक्ति भितर जो प्रभेद रही प्रथम किस्म अर्थात शूद्र को आम जड़ भौतिक जीवन बंचुवा केवल एक सीमाबद्ध जीवन बंचुवा कौन सी नूतनत्व को ग्रहण करू नथिबा मनीष मान को जड़ सर्वस्व मनीष बोली आम कहीपर तापर प्रभु कहते he does nature's inferior works. He assures the basis for the higher activities, but not to him easily are opened the glories of our second part. एठारे मध्य प्रभु से वैदिक परंपरार कथा को उल्लेख करी कहउचंती जे जड़ सर्वस्व मनीषटी मनीष प्रकृतिर निम्नतर कार्य गुड़िक संपादन करने वैदिक परंपरा रे व्यवस्था थिला अर्थात शूद्र माने समाज रे सेवामूलक कार्य करथिले कथा आज भी प्रचलित रही जो माने मानसिक स्तर अनग्रसर से माने समाज से सेवामूलक कार्य करूना आम सब देखुवा एवं ये सेवामूलक कार्य माध्यम से कौन करे he assures the basis for higher activities अर्थात ये सेवामूलक कार्य जहाँ को आम इनफेरियर वर्क्स बोली कहूँ तारी माध्यम से गोटे महान कार्य करता है सेठी होची प्रकृतिर उच्चतर कार्य गुड़िक लगी से गोटे बेसिस गोटे मूलदुआ पकई किंतु बट नॉट टू हिम इजिली आर ओपन द ग्लोरीज ऑफ सेकंड पार्ट अर्थात प्रकृतिर उच्चतर कार्य गुड़िक लगी जड़ प्रकृति मनुष्य सीना मूलदुआ तैयारी करे हेले तापाई द्वितीय जन्मटी संभव हो पारे नहीं जड़गत जीवनटी सेतिकरे सीमाबद्ध हो रही था ये पारा 10 कथा वर्तमान आम जा पारा 11 को प्रभु कहते yet he admits so much of spirituality as has been enforced on his customary ideas by the great religious outposts of the past, and he makes in his scheme of society a place venerable though not often effective for the priest or the learned theologian who can be trusted to provide him with a safe and ordinary spiritual pabula. प्रभु तो जड़गत जीवन सीमाबद्धता कथा कहले हेले प्रश्न उठिबा जे जड़गत मनुष्यटी विकसित हो अग्रगति करू ये प्रकार कौन सी प्रयास अतीत हुई नहीं कि प्रश्न टी आम उठे पारिबा प्रभु कहते येट ही एडमिट सो मच
of the spirituality as has been enforced on his customary ideas by the great religious outpost of the past. अर्थात ଅତୀତରେ କେତେକ ଧର୍ମ ବିପ୍ଳବ ମାନେ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା, କିମ୍ବା ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାର ଶେଷ ଭାଗରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି କରାଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ସମୟରେ ବି ଅନେକ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରାଯାଇଥିଲା, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ବି ସେ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଏମିତି କେତେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଏମିତି ଅନେକ ସଂସ୍କାରକ, ଏଥିରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆଣ୍ଡ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବଙ୍ଗଳାରେ, ଏମାନେ ବି ବହୁତ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ବା ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ସେମାନେ ଥିଲେ। ସେମିତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ ଥିଲେ ଆତ୍ମାରାମ ପଣ୍ଡୁରଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛେ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଯେଉଁମାନେ କି ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଡଗତ ମନୁଷ୍ୟ, he admits so much of the spirituality as has been enforced on his customary ideas by the great religious outburst. ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବିପ୍ଳବ ମାନେ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଜୋର କରି ଏଇ ଜଡ଼ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯେତିକି ସେମାନେ ଜୋର କରି ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ସଂସ୍କାରକ ମାନେ, ଧର୍ମ ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ, ସେମାନେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି and he makes in his scheme of society a place, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ଼ଗତ ମନୁଷ୍ୟଟି ଏହି ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେଇ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଥାନଟିଏ ରଖିଛି। କେମିତି ରଖିଛି? ଭେନେରେବଲ, ବା ତାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରକ ମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଇ ଜଳବଦ୍ଧତା ଭିତରୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଜୋର କରି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମାରୀ ରୁଟିନ ଲାଇଫ ଉପରେ ଯାହା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୋ ନଟ୍ ଅଫନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଶୈଳୀଟିକୁ ବା ନୂତନତାର ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟିକୁ ସେ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁନେ କି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଫଲୋୟର୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଭା ସମିତିରେ କେତେ କେତେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କଲେ ସମାଜ ବଦଳିଯିବ, ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହବ, ଏମିତି କେତେ କଥା କହନ୍ତି। यार अर्थ है साधारण मनीष से धर्म विप्लवी मान सम्मान प्रदर्शन करुच्ची कथा सत, किंतु वास्तव क्षेत्र में ता निजर जीवन शैली से जड़गत प्रकृतिर अधीन ही थाए, कौन सी परिवर्तन को से माने ग्रहण करती ना। फॉर द प्रीस्ट और द थियोलॉजियन माने हला ब्रह्मज्ञानी बा अध्यात्म ज्ञान अधिकारी थियोलॉजियन who can be trusted to provide him with a safe and ordinary spiritual pabulum। अर्थात जड़गत मनीषटी से अध्यात्मर साधक मानी धर्म जाजक मानी तापई गोटे स्पिरिचुअल पाबुलम बा आध्यात्मिक खोराक जोगई देबे बोली से सबले विश्वास करुथाए, किंतु वास्तव क्षेत्र रे से सही जड़ चेतना मध्य रे रहिथा। तापर प्रभु कहउचंती बट टू द मैन हु वुड assert for himself
the liberty of spiritual experience and the spiritual life he assigns if he admits him at all, not the vestment of the priest but the robe of the sannyasi. ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ୱାର୍ଡକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢିଲେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଲ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ପ୍ରିଷ୍ଟ ବଟ୍ ଦ ରୋବ୍ ଅଫ ଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଏଠି ପ୍ରିଷ୍ଟ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋବ୍, ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ପୋଷାକ, ରୋବ୍ ମାନେ ବି ପୋଷାକ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ପୋଷାକଟି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେବାକାରୀ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ନିଆଁ ଲିଭାଳି ଦଳ ବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯୋଉ ODRF NDRF ଟିମ୍ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସେଗୁଡିକ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକକୁ ଆମେ ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁ। କିନ୍ତୁ ରୋବ୍ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ତାକୁ ରୋବ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଫରକ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ପ୍ରିଷ୍ଟ କହିଲେ ଧର୍ମଯାଜକ। ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ଯିଏ ସମାଜର ଉତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାଏ ତାକୁ ତାକୁ ଧର୍ମଯାଜକ ବୋଲି ପ୍ରିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିପରୀତ ପକ୍ଷ କଣ କରେ ନା ସେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖେ। ସେଇ ରୋବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବୋଲି ନିଜକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାନ୍, ଏ ତ ଗଲା ଜଡ଼ ଜୀବନ କଥା, ଜଡ଼ ଜୀବନର କଥା, ଯୋଉମାନେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ବଟ୍ to the man who would assert for himself the liberty of spiritual experience or the spiritual life, ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ତାର ଲିବର୍ଟିକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, he assigns if he admits at all not the vehement of the priest। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭେହେମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଧର୍ମଯାଜକ ରୂପେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁନାହାନ୍ତି ବା କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁମାନେ, ଧର୍ମୀୟ ଗୁରୁମାନେ, ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? if he admits him at all not the vehement of the vestment of the priest, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଧର୍ମଯାଜକର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଏଇ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ଜଡ଼ ଭୌତିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବଟ୍ ଦ ରୋବ୍ ଅଫ୍ ଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ମଠ ମନ୍ଦିର ଆଶ୍ରମ କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ରୋବ୍ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଏଠି ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଧର୍ମଯାଜକର ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ରୋବ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିନାହାନ୍ତି ସମାଜରେ। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲିବର୍ଟିଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସମାଜରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ। ସେମାନେ ଧର୍ମଯାଜକ ନ ହେଇକିରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି outside society let him exercise his dangerous freedom। ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରୁଛି ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଞ୍ଜରସ୍, ସେ ତାକୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଏଇଭଳି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଏପରିକି ସମାଜରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଲଗା ରହୁଥାନ୍ତି। ଆଉଟସାଇଡ୍ ସୋସାଇଟି ଲେଟ୍ ହିମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହିଜ୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍। ଏଇ ସମାଜରୁ ବାହାରି ଯାଇକି ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାଟିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି।
so he may even serve as a human lighting rod से माने भाबुथांती या जे से माने गोटे आलोकर दंड रूपे समस्त को आलोकित करिवे receiving the electricity of the spirit and turning it away from the social edifice से सब ईश्वर ठारू बा अध्यात्म चेतना को ग्रहण करुचंती एथिरे अन्य मान को से आलोकित करिवे किंतु सोसाइटी रो बाहर रही सोसाइटी भितर इंडल्ज होनांती धर्म जाजक होनांती ये पर्यंत गला 11 पाराटी एठी शेष आम आलोचना टी रखा समय आलोचना टी माँ और प्रभु परम पाद अर्पण करुच्ची समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद अनेक अनेक शुभेच्छा वंदे मातरम द्विज अर्थ सेकेंड बार द्विज द्वितीय थर जन्म कहीं ना धरा जाऊ गोटे पिला जन्म होती तार किसी मानसिक विकास घटी ना इंटेलिजेंट प्रवृत्ति तार आसी ना जितेबाला मानसिक स्तर मानसिक चेतनार निम्न स्तर रे बहुतवा व्यक्ति माने अनइंटेलिजेंट पीपल से वैदिक परंपरा रे शूद्र बोली कहा जाउतिला से माने आउ किछि करि परिबे नै इंटेलिजेंट वर्किंग्स द्वारा हो पारे सोसाइटी तेणु से कौन करा जाउतिला ना से माने सेवामूलक कार्य सब करुले एबे भी करूना कि सब जो माने अनइंटेलिजेंट पीपल से माने कौन कर कार्य कर समाज सेवामूलक कार्य ही करुँच कहीं अन्य कार्य निर्वाह करें ना एवं वैदिक परंपरा रे से सेवा माध्यम अवश्य ऋषि माने गोटे यार्डस्टिक निर्णय करते से माने सचोटतार सह सहृदयतार सह यही कार्य को संपादन करने द्वारा से चेतना उन्नति हो तेणु समाज से कार्य गुड़िक दि जाता किंतु जड़े जदि से जो श्लोकटी आपणकर व्रतोपनयन बोला जाए जात शूद्र संस्कार द्विज आचार्य विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण ब्राह्मण को माने जो माने ब्रह्मर उपलब्धि कर ब्राह्मण आ जो माने जीवन चारण रे से माने जितेबाला समाज संस्कार कार्य लगे से माने विप्र आ जो माने मानसिक चेतनार स्तर को आरोहण करिगले इंटेलिजेंट लेवल को आरोहण करिगले बा से स्तर व्यक्ति मान को द्विज सेकेंड बार था गोटे अनइंटेलिजेंट लेवल रे थिले गोटे इंटेलिजेंट लेवल को से आरोहण कले ये कह सेकेंड बार आउ से प्रभु कहले सेटा होचे फॉर्मर लाइफ बा मटेरियल मैन होता फॉर्मर लाइफ बा प्रथम कैटेगरी शूद्र प्रभु डायरेक्ट एगुड़ाक लिखि ना किंतु एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन कथा कहले अर्थात एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन अर्थात आम वैदिक परंपरा रे से व्यवस्था थिला जहाँ को द्विज बोली कह जाता से माने इंटेलिजेंट पीपल से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन कैटेगोरी लोक से इंटेलिजेंट लेवल कह जाता तेणु से गोटे सेकेंड बार माँ माँ कह जाए आपन देखो मु उदाहरण देली जमती अग्निशम बाहिनी वाला गोटे निर्दिष्ट प्रकार पोशाक पिंध कि एनडीआरएफ ओडीआरएफ टीम जो बन्या बात्या समय जो लोक मैंने सहायता करती से गोटे पोशाक थाए स्वतंत्र पोशाक ताको भेस्टमेंट कह जाए भेस्टमेंट माने पोशाक रोब माने भी पोशाक कि कहीं प्रभु ये दीटी व्यवहार कर जो मैंने सब भेस्टमेंट पिंधिले मुझे कहली एनडीआरएफ ओडीआरएफ टीम लोक मैंने कि अग्निशम बाहर अर्थात से माने समाजर सेवा कार्य लगुंट अन्य मानकर सहायता कर धर्म जाजक एटी प्रीस्ट शब्द व्यवहार कले धर्म जाजकर रोल होची समाज रे जो माने जड़ प्राणगत जीवन बंचुचंती बा निम्न स्तर चेतना रही केमती ऊपर को उठेबा से जीवन शैली रे परिवर्तन आनिबा अग्रगति जीवन रे अग्रगति करबा पई तांको सहित प्रोत्साहित करबा बा तांको विभिन्न उपदेश हो बा शिक्षा माध्यम रे तांको आगु को आनिबा ए कार्यटी धर्म जाजक माने करंती तेणु जेहेतु धर्म जाजक माने समाजर सेवामूलक कार्य करुचंती सेठी प्रभु गोटे आलंकारिक छल कर भेस्टमेंट ऑफ दी प्रीस्ट किंतु सन्यासी रोब सन्यासी पोषाक रोब माने आम
ସାଧାରଣତଃ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକକୁ ରୋବ ବୋଲି କହୁ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ତାକୁ ବି ରୋବ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେବାମୂଳକ ବା ସମାଜର ଯୋଉମାନେ ମେଟେରିଆଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅନଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିପୁଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ କେମିତି ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲାଗି ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ସେମାନେ ସିନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତେ, ତାହା ନ କରିକିରି ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରାଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀର ନିଜେ ଅଲଗା ଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏ ସମାଜରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଳଙ୍କାରିକ ରୀତିରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ପ୍ରିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋବ ଅଫ ଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମା